A very good morning, class. Welcome to the psychology class. Today we start revision. Okay, हमारा syllabus complete हो चुका है. That's why आज से revision start करेंगे. First of all, chapter 1. So plan ये है कि first of all हम एक summarize way में whole chapter present करेंगे. After that जो related questions हैं उनका discussion होगा. ठीक है. So chapter 1 में I think revision में 2 classes लगेंगी. उसके बाद फिर question answer discussion. Okay. So revision of chapter 1. Chapter 1 is variations in psychological attributes. So first of all, इस chapter में हमने understand किया था the concept of individual differences. Galton is a main psychologist, well-known psychologist who start the discussing individual differences. ठीक है, किस तरह से in the terms of psychological properties, in the terms of psychological attributes, एक individual दूसरे individual से different है. So first of all, we have to understand what is individual differences. ठीक है, होता क्या है भाई ये? So the definition of individual differences. So, individual differences refers to distinctiveness and variations among people's characteristic and behavioral patterns. So distinctiveness differences refers to distinctiveness and variations among people's attributes and people's characteristic and behavioral patterns. Okay? So this is the individual differences. Now approaches explaining individual differences in psychological functioning. So there are 2 approaches जो differences हैं उसे explain करती हैं. The internal approach and the external approach. So internal approach is known as trait approach and the external approach is known as situationism. Okay? So there are 2 type of approaches. Internal, which is trait approach. External, that is situationism. ठीक है. So situationism is an important 1 marks के क्वेश्चन में sometime ये आ जाता है कि ये situationism क्या है. So situationism is a view which states that situations and circumstances in which one is placed to influence one's behavior. ठीक है, दैट्स मीन ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कंडीशंस है, ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके इन्फ्लुएंस से बिहेवियर या बिहेवियर पैटर्न्स जो है इंडिविजुअल के वो चेंज होते हैं. ठीक है. सो ये अप्रोच एक्सटर्नल फैक्टर को एम्फेसिस करता है. इन्वायरमेंट, कल्चर और सर्कमस्टेंसेस जो भी अवेलेबल कंडीशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं. दिस एक्सप्लेन्स द सिचुएशनल फैक्टर. ठीक है. द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली more as a result of influence of external factors than personality traits. ठीक है, ये उस पे ज्यादा फोकस करता है. Now there is a second term which is important is assessment. ठीक है, after understanding the individual differences we move to the assessment. How we assess these individual differences?
ठीक है. Definitely peoples are different in some aspects. So how we assess them? So first of all, what is assessment? Okay. Assessment. ठीक है. Now assessment predict future behavior interventions to affect a change in behavior. ठीक है. And second important point is in the assessment, first step in understanding a psychological attributes. असेसमेंट क्या है? प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर इंटरवेंशंस टू अफेक्ट अ चेंज इन बिहेवियर. ठीक है. असेसमेंट के बेसिस पे फ्यूचर में उस बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या पॉसिबल चेंजेस हैं, उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसे हम ऑलरेडी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट. नाउ असेसमेंट क्या है, उसमें सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड है? फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को. आफ्टर दैट हम उसको असेस कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ असेसमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है. दो तरह के असेसमेंट थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. सो फॉर्मल असेसमेंट दैट्स मीन जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी और स्टैंडर्डाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइज होगा. वो साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट. एंड इनफॉर्मल असेसमेंट इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस and one assessor to another, open to subjective interpretations. ठीक है. both type of assessment is very much important in psychology. ठीक है. सभी टाइप के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम असेस करते हैं. दोनों ही टाइप के असेसमेंट को यूज करके कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट यूज करते हैं बेसिकली. नाउ द नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स. ठीक है. वी अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देन असेसमेंट. नाउ मूव टू द एट्रीब्यूट्स. भाई ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है? ठीक है. सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, that's mean attributes chosen for assessment depends upon the purpose. ठीक है. For example, improvement of a weak student intellectual strength and weakness are measured, and attributes will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific प्रोसीजर. मतलब यहाँ पे हम असेसमेंट के लिए साइंटिफिक प्रोसीजर को यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स के मेजरमेंट के लिए. और डेफिनेटली इसका कोई ना कोई पर्पस होता है. ठीक है. कि कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई पर्पस लेके यहाँ तब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट करते हैं. नाउ सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. कुछ डोमेन्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब इसमें क्या क्या डोमेन्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम असेस करेंगे. सबसे पहले है इंटेलिजेंस,
ठीक है, attributes, these are the now definition and uses of test. So first of all, intelligence. ठीक, एक जनरल वे में अगर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करें तो वो क्या हो सकती है? अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस विथ challenges. ठीक है, सो इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी, दैट मीन एग्रीगेट कैपेसिटी. ठीक है, जितने भी और सारे इससे रिलेटेड फिनोमेना हैं उनका एक कलेक्शन है. ठीक है, ये ग्लोबल या कह सकते हैं कि हम एक ओवरऑल जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ओवरऑल कैपेसिटी है हमारी, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड the world, think rationally and use available resources effectively. When faced with challenges. ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ टेस्ट. इस फील्ड में हम कौन से टेस्ट यूज कर रहे हैं? So provide a global measure of general cognitive competence and including the ability to profit from schooling. ठीक है, किस तरह से हम इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से स्कूलिंग पे क्या इसका इफेक्ट होगा. दूसरी चीज ये जो है कि क्या जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी को एक्सप्लेन करती है. ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस वी अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स a global measure of general cognitive competence including the ability to profit from schooling. Profit from schooling. Okay, this is the first attributes जिसे हमने understand किया, intelligence. Now second is aptitude. Sorry. And individuals underlying potentials for acquiring skills. ठीक है, individuals potential for acquiring skills. ठीक है, and it is used to predict an individual's capacity
if given the proper environment and training. ठीक है, इसकी इसको टेस्ट हम कहाँ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा इस स्टेप के टेस्ट से. सो यूज टू predict an individual's capacity to predict used to predict an individual's capacity if given the proper environment and training. ठीक है, अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग दिया जाए तो कोई इंडिविजुअल कितना ज्यादा अमाउंट में किसी स्किल को एक्वायर कर पाएगा, उस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा. ठीक है, सो दिस इज द aptitude. Now the next domain is interest. So interest, that means an individual's preference for engaging in one or more specific activities related to other. ठीक है, जब बहुत सारी एक्टिविटीज है तो जहां पे आप प्रेफर कर रहे हो, अपनी प्रेफरेंसेस यूज कर रहे हो कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, या विच वन इज मोर इंटरेस्टिंग. सो दिस इज द इंटरेस्ट. एंड इंडिविजुअल्स preference for engaging in one or more specific activities relative to other. Okay. Now helps decide what subject or course can be pursued comfortably and with pleasure. ठीक है, इसकी बेसिस पे किस चीज में हेल्प होगी कि हम कौन सा कोर्स या कौन सा सब्जेक्ट या कोई भी कौन सा टास्क चूज करें जिसमें हम इफेक्टिवली वर्क कर पाए बिकॉज हमारा इंटरेस्ट लेवल वहां पे है. सो ठीक है, सर help decide what subject or course can be pursued comfortably and with pleasure. ठीक है, सो इंटरेस्ट के लेवल पे ये डिसाइड होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि जिसे हम इफेक्टिवली परस्यू कर सकते हैं. ठीक है, जिसे हमको चूज करना चाहिए. सो दिस इज अबाउट द इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट टू इज पर्सनालिटी एंड वैल्यूज. सो देयर इज अ लिटिल बिट स्पेस. Now next is personality.
सो पर्सनालिटी क्या है? रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर. ठीक है, कुछ ऐसी रिलेटिवली कैरेक्टरिस्टिक of a person that make her or him distinct from others. ठीक है, पर्सनालिटी दैट मीन कोई ऐसी रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे कोई एक इंडिविजुअल अदर इंडिविजुअल से डिफरेंट है, यूनिक है. ठीक है, नाउ इट हेल्प्स टू इट मेजर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर. ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? मेजर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, explain and predict future behavior. ठीक है, सो व्हेन वी नो द पर्सनालिटी तो हम उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज वैल्यू. ठीक है, values, so enduring beliefs about an ideal mode of behavior. And it determine and it determines the dominant value of a person. कौन सी dominant values हैं किसी इंडिविजुअल में, ये एक्सप्लेन करती हैं वैल्यूज. ठीक है, वैल्यूज क्या है? एक इंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. डेफिनेटली जो आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है बेसिकली रिलेटेड टू द मॉरलिटी एंड सोशल पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हमारी वैल्यूज हैं. ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन्स. ठीक है, या एट्रीब्यूट्स हम जैसे कह रहे हैं, एट्रीब्यूट्स डोमेन्स. ठीक है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी, वैल्यूज, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड. दीज आर द एट्रीब्यूट्स जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड इज असेसमेंट मैथड. किस असेसमेंट, कौन कौन से वो असेसमेंट मैथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं? इन सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो डिफरेंट 5 एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े, इन्हें हम किन किन मैथड्स के थ्रू असेस कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट मैथड्स. इसे आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. ठीक है, इन द चैप्टर सेकेंड. सो दीज आर द जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, interview, case study, observation and self-report. There are 5 major assessment methods through which we measure the psychological attributes. ठीक है, जिसे अभी जस्ट हमने अंडरस्टैंड किया. So now the assessment methods.
ठीक है, कौन कौन से असेसमेंट मेथड है, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड measure of an individual's mental and behavioral characteristics. ठीक है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर टूल है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल्स के इमोशनल मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज इंटरव्यू? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस। ठीक है, जब फेस टू फेस या 1-to-1 बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, सो दिस इज द इंटरव्यू। From a person now next is case study। In-depth study of the individual in terms of his or her psychological attributes, physiological history in the context of his or her psychological and physical environment। ठीक है, so it is a depth study। Study of the individual in terms of his her psychological attributes and history। ठीक है, हिस्ट्री में आपको फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल दोनों ही तरह का जो इन्वायरमेंट है, साइको सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट, वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन। सो एम्प्लॉइंग systematic organized and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in real time।
and the last one is self-report. Self-report, that means persons provide factual information about himself or herself, opinions and belief. ठीक है, so definitely in self report जो पर्सन होता है वो खुद से अपने एट्रीब्यूट्स और ओपिनियंस, अपने बिलीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एग्जामिनर को या जो भी एक्सपेरिमेंटर है. ठीक है, सो दीज आर द असेसमेंट मेथड्स थ्रू विच वी असेस द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड इन ब्रीफ. आफ्टर दैट द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 1. जैसे रिटन फॉर्म में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी उसको मैंने यहाँ राइट डाउन किया. यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशंस, दिस कॉन्सेप्ट्स इन जस्ट एग्जैक्ट सेम वे. ठीक है, जैसे है बस वैसे ही आपको वो चीजें लर्न होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट को, और आफ्टर दैट उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि वो क्या है इन डिटेल. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 जिसे आज रिवाइज किया. नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.